Watashi wa Kokyujin no samurai desu. What's going on, guys? Assalamu alaikum, back at it with another video. I hope all of you are doing great. Bhai shuru mein, if somebody wants to know what I said, that was basically I am the black samurai in Japanese. Anyway, यार कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि you come across something which just sort of ticks all the right boxes. I mean, it represents pop culture, it looks good aesthetically and everything, you know, everything is in place, it performs good, functionality अच्छी होती है, and all in all, it's just something that is complete. तो भाई ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ. I came across a G-Shock and man, I was just absolutely blown away by it because it's such a brilliant and beautiful piece. But I couldn't help myself and I ended up buying it and I have it with me today right now. मैंने इसको अभी unbox वगैरह कुछ भी नहीं किया है. I'm just, you know, very excited to sort of get into it. So bhai, today we have the Rui Hachimura first generation signature G-Shock to cover. Acha, before all of this, let me just tell you that Rui Hachimura is a professional NBA player, Japanese boy है. He currently plays for Washington Wizards. Rui Hachimura ने basically दो अपनी जो है G-Shocks निकालनी. He does a lot of things with in collaboration with pop culture and everything. G-Shock के साथ इसकी collaboration है, इसकी Jordans के साथ collaboration है. I think इसका एक Jordan 7 या 8 upcoming है. Looks good. उसके अलावा he has a Jordan 34. Jordan 34 personally मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है. Maybe sometime down the line I might end up buying his signature Jordan 34. उसके साथ साथ इसने दो जो हैं वो G-Shocks निकाली भी हैं अपनी signature models. The one that I have right now is a first generation और इसी अभी एक second generation में आई है. Second generation मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई because of a few color schemes and everything. But this one is a very very beautiful piece. और like I said, let's get into it. Let's cover it in detail. There's a lot happening with this watch aesthetically. Functionality तो अपनी जगह हैगी. This is base version जो है इसका वो GST 100B I believe हैगा, which is the G Steel series of G-Shock. और उसके ऊपर they have done numerous additions to sort of make it Rui Hachimura's signature G-Shock. So without further ado, let's get into it. Let's unbox this and look at it in detail. So guys, this is the box और ये बाहर वाला डब्बा, अंदर इसका एक और डब्बा है. पहले बाहर वाले डब्बे को देख लेते हैं. यहाँ पे 8 लिखा हुआ है. 8 की सिग्निफिकेंस मैं आपको अभी बताता चलूँगा. बट पहले यहाँ पे जो टैग लगा हुआ है गोल्ड में, वो बेसिकली Rui Hachimura X G-Shock, और डब्बा जो है वो ब्लैक है और उसके ऊपर गोल्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हुआ है. बाकी और कुछ भी नहीं लिखा हुआ. नीचे आपकी लेबलिंग वगैरह, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें हुई हुई हैं. अच्छा, इस लोगो को हम देखें तो दिस इज़ द मेन डील. दिस इज़ बेसिकली द ब्लैक समुराई लोगो और यू कैन से दिस इज़ Rui Hachimura's सिग्नेचर लोगो. इसमें बेसिकली सीन हो रहा है. अच्छा, दिस वाज डिज़ाइंड बाय हिज मदर. अगर आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन हटा दें विच इज़ द सोर्ड बेसिकली, तो यू हैव 2 मार्किंग्स विच बेसिकली is written Hachi in Japanese, और Hachi also means as 8 और it is also in Hachimura's name as in Hachi. उसके अलावा उसका Rui Hachimura का जो जर्सी नंबर है that is also 8. तो 8 जो डिजिट है उसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस दी गई है इस पर्टिकुलर मॉडल पे G-Shock के. उसके बाद अगर आप देखें तो इस लोगो के थ्रू एक सोर्ड गुजारी गई है which basically completes it as a H, और आपको लगता भी है कि वो H बना हुआ है, और सिंस वो सोर्ड गुजारी गई है तो it basically becomes the black samurai logo. Very cool, very legit back story. I absolutely loved it. जैसे मैंने शुरू में कहा कि ऐसी चीज़ अगर आपके सामने आती हैं जो सर्टेन कूल चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं तो इट जस्ट फील्स गुड बाइंग दैम. अच्छा जी, अब हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं. डब्बा ऐसे खुलता है आपका. इसको हम साइड पर रखें. अंदर दिस इज़ योर मेन बॉक्स. इसको भी अभी हम थोड़ी देर साइड पे रखेंगे. यहाँ पे आपको एक और छोटा डब्बा मिलता है. इसके अंदर आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है. नथिंग टू फैंसी अबाउट दैट. अब हम आ जाते हैं अपने मेन बॉक्स पे. सो हियर इट इज़, दिस इज़ योर मेन बॉक्स. और इस पे भी आप देख सकते हैं कि पूरा प्लेन ब्लैक है और इस पे जो है वही ब्लैक समुराई का लोगो ऊपर बना हुआ है. नाउ लेट्स ओपन इट अप. और 2 सेकंड के लिए आई एम नॉट गोना शो इट. घड़ी को हम रखते हैं साइड में. अंदर आप देखते हैं तो यू हैव माई टाइम रिटन और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है Rui Hachimura X G-Shock. Guys, there you have it. That is the Rui Hachimura G Steel signature G-Shock. I mean, come on guys, that is an absolutely beautiful looking piece. अच्छा, थोड़ा सा कलर स्कीम्स का मसला हो रहा होगा, बट आई ट्राई टू सॉर्ट ऑफ डिपिक्ट दिस एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल. सबसे पहली चीज़ अगर आप देखते हैं घड़ी को तो यू हैव दिस वेरी स्टीम पंक वाइब टू इट. ऑल्दो आई डोंट थिंक दैट वाज इंटेंशनल, बट स्टिल यू गेट अ वेरी स्टीम पंक वाइब टू द एंटायर
वॉच। इसका जो बेजल है, यू हैव दिस बिग थिक बेजल, उसके अलावा अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ रोटरी काइंड ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, जिसकी वजह से इस पर एक बड़ी ही कोई स्टीम पंक वाइब आती है। और ऊपर से जो इन्होंने गोल्ड यूज करा है, इट्स नॉट दैट चीप यू नो चमकता हुआ गोल्ड, इट्स गोल्ड, येस इट्स देयर, इट्स शाइनिंग, बट इट्स अ वेरी यू नो हाउ शुड आई से सटल काइंड ऑफ गोल्ड, जो बेसिकली आपको बहुत सारी स्टीम पंक की चीज़ों में नजर आ रहा होता है। अगर आप वॉच के पीछे देखें तो यू हैव द ब्लैक सैमुराई लोगो, अगेन वेरी कूल, बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे ये। इसके अलावा स्ट्रैप कीपर जो है, इस पे भी यू हैव द ब्लैक सैमुराई लोगो गोइंग ऑन, और इसका बकल जो है इट्स इन द सेम गोल्ड थीम, जिस थीम पे बेसिकली पूरी वॉच है। बैंड्स जो है इसके रेजिन बैंड्स हैं, एंड दे आर दीज textured resin bands, which is good for me. I do not like smooth surfaces. That sounded wrong. Anyway, so this has like that rough namak para texture to it. अंदर से it's red, और अंदर वाला texture जो है resin का वो smooth है compared to the outer texture. Outer is rough, inner is smooth. Inner is red, outer is black. Very good color accents. They sort of you know complement each other very good. अच्छा, वॉच को जब हम करीब से देखते हैं तो you can see के this is basically the base G steel variant, जिसकी जो ये टर्बाइन वाला जो पार्ट है ये सिग्नेचर है जी स्टील वेरिएंट्स पे, एंड इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ टर्बाइन, और एटलीस्ट आई लाइक टू कॉल इट अ टर्बाइन। नीचे जो है इसके वर्ल्ड टाइम वाला इसका डायल दिया हुआ है, सो इट हैज़ 2 टाइम्स। आप इसका होम टाइम सेट कर सकते हैं और वर्ल्ड टाइम सेट कर सकते हैं। इसकी जो जी शॉक की ऐप है उससे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता चलूँगा। और यहाँ पे एक कनेक्ट का बटन है। अच्छा, बिफोर ऑल ऑफ दैट आप देख सकते हैं कि 8 जो डिजिट है घड़ी में उस पर रेड मार्किंग हुई हुई है। अगेन इट रिप्रेजेंट्स हाची, सो हाची इज फॉर 8, विच मीन्स 8 जो पॉइंट है उस पर इन्होंने रेड से मार्किंग करी हुई है। और कनेक्ट का जो बटन है, जो बेसिकली आपकी वॉच को आपके फ़ोन से कनेक्ट करता है, विच इज़ अ ब्लूटूथ बटन, सिंस वो भी उसी पोजिशन पे, सो दे हैव मेड इट रेड एज वेल। वेरी गुड अटेंशन टू डिटेल। उसके अलावा जो इन्होंने टर्बाइन लगाया है वो भी रेड है। बाकी यहाँ पे आपकी डेट शो हो रही है, और ऊपर जो है आपका मोड इंडिकेटर डायल है। यहाँ पे अगर आप इसको शो करें तो एज यू कैन सी कि आपका टर्बाइन घूमना शुरू हो जाएगा। स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, ये सारे फंक्शंस आपके शो हो जाएंगे। बाकी इस वॉच में आपका LED एलिमिनेटर भी है, एज यू कैन सी। रात के टाइम पे आपको देखने में कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी, और इसके ग्लो इन द डार्क जो हैं वो मिनट और आवर हैंड्स भी हैं। इसके अलावा दिस इज़ अ सोलर पावर्ड वॉच, दिस इज़ टफ सोलर, दिस इज़ 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंट। बाकी आपकी जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, और इसका जो ये ग्लास है, दिस इज़ नॉट सफायर, दिस इज़ ए मिनरल ग्लास। तो कहीं तो भाई कॉस्ट कटिंग थोड़ी बहुत करनी थी, बट आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। द वॉच इज़ एन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल लुकिंग पीस। आई एम जस्ट यू नो आई एम इन लव विद दिस। Gold is not easy to pull off on watches, especially on these kind of you know pop culture affiliated watches. Gold बहुत सारी watches में होता है, and it looks good on the luxury top tier watches, but something like this with its vibrant colors, red, gold and black, it's not easy to pull off. Or I don't think this is going to be everyone's cup of tea as well, because हर किसी को इतने ज़्यादा बोल्ड कलर्स जो हैं वो पसंद नहीं आते, but then again this just works perfectly fine for me. अच्छा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो वॉच है वो जी शॉक की जो ऐप है उससे कनेक्ट करी हुई है, और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स मिल जाएंगे। आपको वर्ल्ड टाइम सेट करने का मिल जाएगा, होम जोन मेरा कराची सेट हुआ हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी वर्ल्ड टाइम का सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर वो वॉच में आपको डुअल टाइम उसी सिटी का देगा, दैट एंड योर होम सिटी। बाकी इसके अलावा आपकी यूटिलिटी में आ जाते हैं आप, तो आप क्या ये सारे फीचर्स आ जाएंगे, टाइमर, अलार्म और ये सारी चीज़ें। ऐप में इसके इतने ज़्यादा डिटेल्ड फीचर्स नहीं है, बिकॉज देन अगेन फंक्शनैलिटी को इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। दैट्स अ गुड थिंग कि आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया हुआ है। फाइंड का एक ऑप्शन है जिससे आप बेसिकली अपना फ़ोन ढूंढ सकते हैं, या आपके फ़ोन को पिंग कर देगी घड़ी अगर आपका फ़ोन खो गया है, और समथिंग लाइक दैट। एंड देयर यू गो, दैट्स अ वॉच ऑन माई रिस्ट। इट्स अ वेरी बिग बल्की वॉच। हाँ, मेरी कलाइयाँ कुछ ज़्यादा ही पतली भी हैं, बट देन अगेन आई मीन डू थिंक अबाउट इट बिफोर यू बाय इट, कि भाई ये इट्स नॉट अ स्लिम प्रोफाइल और अ लो प्रोफाइल वॉच लाइक मोस्ट ऑफ द Edifice lineup. This is one big chunky boy. So that's how it looks on wrist. And yep. So guys, that was the Rui Hachimura first generation signature G-Shock. I hope you guys liked the video, and I hope you guys liked the watch as well. If you did, please subscribe to the channel, like the video, and I'll see you guys next time. Allah Hafiz.